Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7. This is a derived series by Amit Publishing House and here is a book Codecraft Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 10, Conditional Statements in Python. Here let's move on to the core concepts. So on completion of this chapter you will be able to know about decision making statements. Let's move on to the warm up exercise. There are certain rules in Python that have to be followed to form valid variable names. कुछ rules है Python में जिन्हें हमें follow करना होता है ये जो variable names हैं उनको form करने के लिए. So you have to write them in the space given below. यहाँ पे जो space है वहाँ पे आपको वो rules लिखने हैं. So this you have to do yourself. There are situations in life when we need to decide based on a situation. कई बार क्या होता है ऐसी situation आ जाती है लाइफ में जहाँ पे हमें decide करना होता है situation के basis पे. For example, if it rains, अगर बारिश होती है, I will stay at home, मैं घर पे रहूँगा, और else I shall visit the market, और अगर नहीं होती तो मैं market जाऊँगा. Similar situations arise in programming as well और ऐसी situations programming में भी आती हैं where we need to make some decisions and based on these decisions execute a set of commands जहाँ पे हमें कुछ decision लेने होते हैं और इन decision के basis पे ही हमें कुछ commands को execute करना होता है. We need to determine which action is to be taken. हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके के action को लेना है and which statement is to be executed और किस statement को execute करना है. If the outcome is true or false कि अगर वो outcome जो है true है या फिर false. So now let's move on to decision making statements. So decision making in Python is done by using conditional statements. ये जो decision making है Python में ये conditional statements को use करके किया जाता है. Which decide the flow of program execution, जो program execution के flow को decide करता है. The following conditional statements are available in Python. Python में ये दिए गए conditional statements available हैं. If statement, if else statement, nested if statement, if elif else ladder. So ये कुछ decision making statements हैं Python में. Let's move on to the if statement. So the if statement is the simplest conditional statement. ये सबसे ज़्यादा आसान simple conditional statement है. Here the statement or a collection of statements within the if block is executed. जो भी चीज़ लिखा गया है if block के अंदर वो सारा execute हो जाता है only if a certain condition or expression evaluates to true. अगर कोई भी एक condition या फिर expression जो है true होता है. If the condition evaluates to false, अगर condition false होता है तो क्या होता है? Then the control of execution is passed to the next statement. जो control है execution का वो अगले statement तक चला जाता है after the if block के बाद जो है. The syntax of the if statement is given below. Syntax जो है जो कि if statement की है वो यहाँ दी गई है and you can see the syntax. Syntax में आप देख सकते हैं if text expression indented statement block if block ends here. So आप देख सकते हैं text expression अगर true है तो body of if and then statement just below if और अगर false है तो सिर्फ हमें जो है statement just below if उसे execute करना है. So let's move on to extra bytes. So in Python the non-zero value is interpreted as true. Python में जो non-zero value है उसे true इंटरप्रेट किया जाता है, उसे ट्रू माना जाता है. नन एंड जीरो आर इंटरप्रेटेड एज फॉल्स. नन और जीरो जो है यहाँ पे फॉल्स माना जाता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम 1 टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो दिया गया नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं. सो आप देख सकते हैं ये जो कमांड्स यहाँ लिखे हैं हमें यहाँ पे टाइप करना है एंड when we type these commands on running the above program we get the following result. इस प्रोग्राम को लिखने के बाद ये जो रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है वो हमें मिलेगा. तो आप देख सकते हैं all numbers greater than 0 are positive, all numbers greater than 0 are positive. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 लिखा है
एंड -45 लिखा है। नेक्स्ट देयर इज अनदर प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 2 टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है उसे जो है दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं इफ डे इज इक्वल टू 366, योर आंसर इज करेक्ट, गुड जॉब। सो अगर जो है यहाँ पे हमने डाला है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, अगर आंसर 366 आता है तो आपको बोलना है योर आंसर इज करेक्ट, गुड जॉब। सो यहाँ पे ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं वी कैन सी हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर 366, तो आंसर आ गया येस, योर आंसर इज करेक्ट, गुड जॉब। और अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर 365, तो आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका, इट विल बी इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट कम्स द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स फॉर अ कंडीशन, ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये कंडीशन को चेक करता है, एंड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जो भी इंटेंडेड ब्लॉक्स हैं फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जो इफ स्टेटमेंट के बाद के ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट के बाद जो ब्लॉक है उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो द सिंटेक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, ये सिंटेक्स यहाँ पर दिया गया है, इफ अगर सही है तो यूज करो, नहीं तो अगले ब्लॉक पे पहुंच जाओ। ये है आपका फ्लो चार्ट जो आपको शो कर रहा है कि कंडीशन ट्रू है तो अगले स्टेटमेंट में पहुंचे, नहीं तो आप यहाँ पे पहुंचे। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रोग्राम नंबर 3 टू कंपेयर टू नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। दो नंबर्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ए और बी दो नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर जो है ए बड़ा है तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, और अगर दूसरा वाला बड़ा है तो हम लिखेंगे सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। सो हियर ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम, अब ये जो प्रोग्राम है इसे हम रन जब करते हैं तो वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है लिख दिया है फर्स्ट नंबर 45, सेकेंड नंबर 67। क्या फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड वाले से बड़ा है? नो। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, आंसर आया है सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे 36, 22 लिया है, दो नंबर्स लिए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 36 बड़ा तो हमने लिख दिया है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम 4 टू डिस्प्ले वन ऑफ द टू ऑल्टरनेट मैसेजेस। दो में से एक मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ में हमने लगाया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द एग्जाम्स, एंड एल्स अगर पास होता है, पासिंग मार्क्स जो 60 से अबव है तो ये लिखना है, नहीं तो क्या लिखना है, यू फेल, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट लगे हुए हैं। लेट्स सी ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इसको रन करने के बाद हमने क्या देखा कि 78 मार्क्स यहाँ पे आए हैं, 60 से अबव होना चाहिए, तो 78 आए हैं तो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द एग्जाम्स। अब 60 से अबव चाहिए था पर यहाँ पे 45 आए हैं तो मैसेज आया है यू फेल, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। So like this we apply the statements. Next आता है nested if statement. So Python allows the nested if statement. Python में ये जो nested if statement है ये चलता है। This means the if intended block inside another if else intended block. ये दिखाता है intended block को जो कि if के अंदर है, और नहीं तो जो else के अंदर intended block है उसे रन किया जाता है। So the second nested if intended block will run only when the first if condition evaluates to be true. अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी जो दूसरी if कंडीशन है वो आगे बढ़ेगी। So the syntax of nested if statement is shown below. यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं जहाँ पे हमने if का एक कंडीशन दिया है और अगर वो फुलफिल हो जाता है तो अगला वाला कंडीशन चलेगा if का, एंड अगर वो नहीं होता है तो एल्स के दो स्टेटमेंट दिए हैं ये बारी बारी से चलेंगे। सो हियर द एक्सप्रेशन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, प्रोग्राम 5 पे आते हैं। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फॉर द कॉलेज
और नॉट बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि जो बच्चा है वो कॉलेज के लिए क्वालिफाई होता है या नहीं। फर्स्ट वन इज सेलेक्टेड इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 18, दोनों ही बड़े हैं। नेक्स्ट, नॉट सेलेक्टेड इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एज तो बड़ी है 18 से लेकिन मार्क्स 65 से कम है। नेक्स्ट थर्ड वन, नॉट सेलेक्टेड इफ एज इज लोअर देन 18, अगर एज 18 से कम है। तो ये तीन कंडीशंस यहाँ पे लगाए गए हैं। सो ये आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन हमने लिख दिए हैं, नेम, एज और मार्क्स, तीनों चीजें यहाँ पे एंटर कर दी गई हैं। एंड इफ स्टेटमेंट 2 बार लगाया है, एल्स स्टेटमेंट लगाया है। सो ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम वी गेट द फॉलोइंग आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है तनिष्क है, एज है 20 और मार्क्स है 90। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट क्या लिखा है, तनिष्क इज सिलेक्टेड फॉर कॉलेज, तनिष्क का सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे नेम दिया है स्टूडेंट का वो है पाखी, एज है 15 एंड मार्क्स है उसके 80। सो यहाँ पे क्या मैसेज है, पाखी इज टू यंग फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए काफी ज्यादा यंग है, उसकी एज कम है। नेक्स्ट प्रोग्राम 6, सो टू चेक इफ द गिवन नंबर इज लकी और नॉट, ये जानने के लिए कि जो दिया गया नंबर है वो लकी है या नहीं। इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इवन, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है और इवन है तो प्रिंट करना है लकी नंबर, एल्स प्रिंट करना है नॉट अ लकी नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ कंडीशन हमने लगा दी है, नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। सो ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम वी गेट द फॉलोइंग आउटपुट, इस प्रोग्राम को चलाने पे ये आउटपुट हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं नंबर है 21, तो यहाँ लिखा है नॉट अ लकी नंबर। यहाँ है नंबर 16, तो ये लिखा है लकी नंबर। नेक्स्ट कम्स द इफ एलिफ एल्स लैडर। So the if elif else ladder is another type of if statement, ये एक और तरीके का if statement है। It helps us to test multiple conditions and follows a top down approach। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने में और ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को। In this, as soon as the condition of the if evaluates to be true, इसके अंदर जैसे ही कंडीशन जो है इफ की वो ट्रू होती है, द इंटेंडेड ब्लॉक एसोसिएटेड विथ दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे जो इंटेंडेड ब्लॉक है इसके अंदर वो जो इससे जुड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द लैडर इज अवॉइडेड, और जो बाकी लैडर है उसे अवॉइड किया जाता है। इफ नन ऑफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा, जो फाइनल एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सो द सिंटेक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स लैडर इज शोन बिलो। ये है सिंटेक्स जहां पे हमने इफ कंडीशन लगाया है, फिर एलिफ कंडीशन लगे हैं 2 बार और फिर आता है हमारा एल्स कंडीशन। सो दिस वाज द सिंटेक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम 7 क्या बता रहा है, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज 2 डिजिट नंबर। ये बताना है कि जो दिया गया नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है या नहीं, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। सो आपको बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो 2 डिजिट, 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट है या नहीं। सो आप देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट लगाया है, प्रिंट नंबर 99 999 4 times 9। सो यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाया है। सो ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम ऊपर लिखा है उसे रन जब हम करेंगे वी गेट द फॉलोइंग आउटपुट। सो यहाँ पे हमने नंबर डाला है 23, तो ये 2 डिजिट नंबर है, 233, 3 डिजिट नंबर है 2333, ये 4 डिजिट नंबर है। सो ऐसे उनके आंसर्स आपको मिले हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोग्राम 8। Here you have to print the message based on the marks entered। यहाँ पे जो है हमें मैसेज जो है प्रिंट करना है मार्क्स के बेसिस पे। द मैसेज इज डिस्प्लेड, जो मैसेज जो है यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो है सॉरी यू आर फेल्ड इन द एग्जाम इफ द मार्क्स आर लेस देन 35। तो यहाँ पे हमें लिखना है सॉरी तुम एग्जाम में फेल होते हो जब तुम्हारे नंबर 35 से कम आते हैं। इफ द मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 60, अगर मार्क्स
60 के बराबर है या उससे कम है तो मैसेज आएगा पास विथ सी ग्रेड। If the marks are greater than 60 and less than or equal to 85, अगर मार्क्स जो है 60 से ज़्यादा है और लेस देन और इक्वल टू है 85 के, तो क्या करना है, डिस्प्ले करना है पास विथ बी ग्रेड। इफ नन ऑफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है, देन द मैसेज डिस्प्लेड इज पास विथ ए ग्रेड। तो मैसेज टाइप करना है ए ग्रेड से आप पास हैं। तो ये कंडीशंस हमें यहाँ पे लगाना है। इफ माई मार्क्स इज less than 35, if my marks is less than or equal to 60, if my marks is greater than 60, or we have put the else statement pass with A grade. So these all things are written here in our program. So on running the above program, अब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद we get the following output. ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है ये मिलेगा। So अब पहले में देख सकते हैं मार्क्स है 60, तो यहाँ पे लिखा है पास विथ सी ग्रेड, मार्क्स है 86 तो पास विथ ए ग्रेड। मार्क यहाँ पे मार्क्स है 30 तो सॉरी यू फेल इन द एग्जाम। मार्क्स है यहाँ पे 80 तो पास विथ बी ग्रेड। सो दीज आर द आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक टाइम। सो द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है। इन द इफ एल्स स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा, द इंटेंडेड ब्लॉक फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। वो स्टेटमेंट जो भी इफ ब्लॉक में है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी ब्लॉक होगा एल्स स्टेटमेंट में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पाइथन अलाउज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द इफ एलिफ एल्स लैडर helps us to test multiple conditions and follows a top-down approach. So these are some of the important points to be remembered. Now let's move on to book exercise, which is knowledge check. E exercises mark the correct response. So here the first one is, which of the following conditional statements is used to test multiple conditions? If else, if, elif, else, all of these. Correct answer is if, elif, else. Next, question number 2, what will be the output of the following code if the condition evaluates to false? If true, print hello, if else, print hi. So here if the condition evaluates to be false, the print will be hello, hi, none of these. Correct answer is hi. Now let's move on to the next one. Third, which of the following is not the conditional statement in Python? If statement, if else statement, if elif else statement, none of these. None of these is the correct answer. Question number 4, what is the answer to the expression 2 multiply 2 multiply 2? Is it 2, 16, 4, 8? Correct answer is 16. Now question number 5 is, if A is equal to 20 and B is equal to 10, then what will be the output of the following code? If false, print A plus B, else print A minus B. And the options are 30, 20, 10, nothing will print. Correct answer is C, 10. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to B exercise, which is gap fill exercise. So the first one is, the if statement is the simplest conditional statement. Second, in Python the non-zero value is interpreted as true. Third, decision statements may give the results true or false. And the fourth one is, the else block will be executed if and only if the provided condition evaluates to false. So these are the answers. Let's move on to C exercise, which is true and false assessment. First one is, the if, elif, else statement follows a top-down approach. This is true. Second, Python does not allow nested if statement. This is false. Third, the if
elif else ladder not a conditional statement in Python. This is false. Fourth, the if statement executes a command if the provided condition evaluates to true. Yes, true. And the fifth one is the if elif else statement allows you to test only one condition. This is false. Let's move on to the exercise, which is give appropriate responses to the questions. First one is, what is decision making statement? So decision making statement helps execute different blocks of code based on specific conditions. Question number 2 is, write the syntax for the if elif else statement. So the syntax for if elif else statement is if condition 1 elif condition 2 else. Now question number 3 is, write the syntax of the if statement. The syntax of if statement is if, then the condition. Question number 4 is, what is the difference between if and if else statements? So the if statement, it only executes blocks of code that are within the if block till the condition is true, and the if else statement, it provides two code path in which in one execution, and if the condition is true, it executes the different block, otherwise it executes the else box. So these are the answers that you have to write down, and you can add some of your points here. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.